السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذه الدرس السابع، یہ 7 چیپٹر ہے. سابع مطلب ساتواں، 7th، یہ جو ہے 7 چیپٹر ہے. من هذه، یہ عورت کون ہے. اب یہاں پر یہاں سے جو ہے اس چیپٹر سے آپ کے تھوڑے بہت اور بڑے بڑے سینٹنسز اور کچھ کہانی وغیرہ جو ہے ایک کہانی ایک سینیریو والے جو ہے سینٹنسز شروع ہو رہے ہیں. چلو، من هذه، یہ عورت کون ہے. هذه آمینہ، یہ لڑکی آمنہ ہے یا یہ عورت آمنہ ہے. ومن تلکا، اور وہ کون ہے. میں نے بتایا تھا یہاں پہ اس میں اشارہ میں هذه یہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلکا مؤنث بعید کے لیے. یعنی اگر کوئی فیمیل ہے اور قریب ہے تو اس کی طرف هذه سے اشارہ کریں گے، یہ جسے ہم عربی میں کہتے ہیں یہ. جی جسے ہم عربی میں کہتے ہیں یہ. اور تلکا جو ہے مؤنث بعید کے لیے، یعنی فیمیل بھی ہے اور دور ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم تلکا استعمال کریں گے. تلکا یعنی وہ عورت، وہ لڑکی. جیسے الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے، الشمس جو ہے مؤنث ہے، یعنی شمس سماعی مؤنث ہے. سننے سے ہم نے اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے سماعی ہے اور مؤنث ہے. تو ہم اس کو استعمال کریں گے تلکا شمسن، تلکا شمسن، وہ سورج ہے، وہ ایک سورج ہے، وہ ایک آفتاب ہے. تو اس کے ساتھ تلکا استعمال کریں گے. دور بھی ہے، بعید ہے اور مؤنث ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ تلکا استعمال کریں گے. تلکا شمسن، وہ ایک سورج ہے. ٹھیک، ادھر دیکھیے. ومن تلکا، اور وہ عورت کون ہے. تلکا فاطمہ، وہ عورت، اس عورت کا نام فاطمہ ہے یا وہ عورت فاطمہ ہے. آپ اس کے دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، اس عورت کا نام فاطمہ ہے یا وہ عورت فاطمہ ہے. هذه طبیبۃ وتلک ممرضۃ، یہ عورت لیڈی ڈاکٹر ہے. طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر. طبیب مطلب ڈاکٹر. ٹھیک، اسی کے اخیر میں ہم نے گولتا یہ لگا دی تو یہ طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر مؤنث لیڈی ڈاکٹر ہوگی. اور یہاں پر ایک اور لفظ آیا ہے مریض، یعنی میل مریض مذکر، اور مریضۃ مؤنث فیمیل. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مریضوں سے ملتا جلتا ممرضۃ، ممرضۃ، ممرضۃ مطلب نرس، ممرضۃ، ممرضۃ مطلب نرس. هذه طبیبۃ، یہ عورت لیڈی ڈاکٹر ہے. وتلک ممرضۃ، اور وہ نرس ہے. هذه من الہند وتلک من الیابان، یہ عورت ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے. هذه طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ عورت لمبی ہے اور وہ عورت پستہ قد ہے، کم ہائٹ کی ہے. تو یہاں پر هذه اور تلکا میں جو ہے یہاں پہ ڈفرینشیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ هذه کیسے استعمال ہوگا اور تلکا کیسے استعمال ہوگا. تو هذه کس کے لیے استعمال ہوگا. هذه جو ہے وہ مؤنث قریب کے لیے، میں ایک بار پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں. ایک ہے هذا، ٹھیک، کس کے لیے، مذکر قریب کے لیے، مذکر ہے اور کیا ہے قریب ہے. ٹھیک، اور ذالکا مذکر بعید کے لیے، دور کے لیے، مطلب دور کے لیے. هذه
मुअन्नस करीब के लिए, और तिल्का मुअन्नस बईद के लिए। ये देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक अभी आपने 4 पढ़े हैं, हाजा, ज़ालिका, हाज़िही और तिल्का। ठीक, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाया कीजिए, जो आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए, मन हादा, यहाँ पे फिर मुज़क्कर की बात आ गई। मन हादा, ये लड़का कौन है? हाजा जो है वो करीब है, और कौन है? मुज़क्कर है। ये लड़का कौन है? हादा हामिदुन, ये हामिद है, ये लड़का हामिद है, ये हामिद है। वमन ज़ालिका, और वो कौन है? ज़ालिका अलीयुन, और वो अली है। अतिल का दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? दजाजतुन मुर्गी, अतिल का दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? ला, तिलका बत्ततुन, नहीं वो एक बतख है। बत्ततुन मतलब बतख। मा तिलका, वो क्या है? तिलका बैदतुन, वो एक अंडा है। तिलका बैदतुन, वो एक अंडा है। तो यहाँ पर वही हाज़िही और तिलका और हाज़ा और ज़ालिका के जो है उसके अंदर कुछ जुमले बनाए हैं और डिफरेंशिएट किया है कि किस में जो है कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा और उसका किस तरीके से जो है उसके अंदर फ़र्क किया जाएगा। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस व तिलका सय्यारतुल मुदीर, ये मुदर्रिस की कार है और वो डायरेक्टर साहब की कार है। तो सय्यारा जो है वो मुअन्नस है, सय्यारा मुअन्नस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाज़ी इस्तेमाल हुआ। और ये वाली गाड़ी जो है वो करीब है तो इसके लिए हाज़ी इस्तेमाल हुआ, और वो वाली गाड़ी जो है वो दूर है उसके लिए यानी तिल का इस्तेमाल हुआ। हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिस, हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिस, ये उस्ताद की गाड़ी है। व तिलका सय्यारतुल मुदीर, और वो डायरेक्टर साहब की कार है, नाज़िम साहब की कार है। अस्साअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या ये अब्बास की घड़ी है? अस्साअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला, हाज़िही साअतु हामिद, ये हामिद की घड़ी है। तिलका साअतु अब्बासिन, और वो अब्बास की घड़ी है। हाज़िही साअतु हामिदिन, ये हामिद की घड़ी है। व तिलका साअतु अब्बासिन, और वो अब्बास की घड़ी है। यहाँ पर वाव लगना चाहिए था, यहाँ पर वाव लगना चाहिए था जो नहीं लगाया गया। व तिलका साअतु अब्बासिन, ज़ालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, ये मुर्गा है। अब देखिए, ज़ालिका, ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुज़क्कर के लिए, है ना। तो दीकुन क्या हो गया हमारा? मुज़क्कर हो गया, मुर्गा। और दजाजतुन क्या है? मुअन्नस है, उसके साथ तिल का इस्तेमाल हुआ है। ज़ालिका और तिलका, ये दोनों जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों के दोनों दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़ालिका दीकुन, वो एक मुर्गा है। ज़ालिका दीकुन, वो एक मुर्गा है। व तिलका दजाजतुन, और वो एक मुर्गी है। ज़ालिका दीकुन, वो एक मुर्गा है। व तिलका दजाजतुन, और वो एक मुर्गी है। दोनों, ये मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, लेकिन दोनों बईद के लिए यानी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी मुर्गा और मुर्गी दोनों दूर दूर खड़े हैं ना। तो ज़ालिका दीकुन, वो एक मुर्गा है। व तिलका दजाजतुन, और वो एक मुर्गी है। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे एक सवाल था कि अब्बास तो मुज़क्कर है तो उसके लिए हाज़िही क्यों इस्तेमाल किया गया? तो अब्बास हाज़िही, तो देखिए यहाँ पर
असाअतु अब्बासिन हादिही, क्या ये अब्बास की घड़ी है। तो ये का जो हाजिही की जो ज़मीर लौट रही है वो साअतुन की तरफ लौट रही है, यानी घड़ी, और घड़ी जो है वो मुअन्नस है। अब्बास की घड़ी, अब्बास की घड़ी, तो असल जो वो है हमारा पॉइंट है वो जाएगा घड़ी की तरफ, ना कि अब्बास की तरफ। तो अब्बास साअतुन चूंकि मुअन्नस है इसलिए जो है वो हाजिही इस्तेमाल हुआ है। इक़रा वक्तुब, और ये जो है तमारीन है, जो है एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में करके भेजिए। एक्सरसाइज ये जो है ये होमवर्क है। होमवर्क को कहते हैं अरबी में वाजिबुन मंजिलियुन। वाजिबुन जो काम वाजिब है, मंजिलियुन घर का, जो घर का वाजिब काम है, ज़रूरी काम है, उसको कहते हैं वाजिबुन मंजिलियुन, होमवर्क को कहते हैं। ये डालिए और जो है अपना वाजिबुन मंजिलिया भेजिए। ये आपका वाजिब मंजिलिया है। हादिही मदरसा, इसकी जो है इसका ट्रांसलेशन करके भेजिए। ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन करके ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह। अशर इलल कलिमात अल आतिया बिस्म इशारत लिल बईद ज़ालिका व तिल्का। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे बईद का इशारा, दूरी वाला इशारा जो है ज़ालिका और तिल्का इस्तेमाल करना है। अब ज़ालिका जो किसके लिए आएगा, वो मुज़क्कर के लिए आएगा, और तिल्का जो है वो मुअन्नस के लिए आएगा। उस लिहाज से जो है आपको इस्तेमाल करना है। तो उम्मुन, तो उम्मुन क्या है, उम्मुन मतलब वालिदा, अम्मी। तो उनके लिए ज़ालिका इस्तेमाल होगा या तिल का इस्तेमाल होगा, तिल का इस्तेमाल होगा। तो तिल का उम्मुन, वो अम्मी है। अबुन, अबुन के लिए ज़ालिका इस्तेमाल होगा, वो एक अब्बा हैं, वो एक वालिद हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये भी सिर्फ ज़ालिका और तिल्का का इस्तेमाल करना है यहाँ पे सिर्फ। बहुत आसान है, तो पूरा चैप्टर ही कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ज़ालिका और तिल्का का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स दे दिए आपको। अल मुमर्रिदा, अल मुमर्रिदा मतलब नर्स, ठीक। अल हदीक़ा मतलब गार्डन, ये तो शायद पहले भी आ चुका है। बागीचे को जो है कहते हैं अल हदीक़ा यानी गार्डन। अल बत्ततु, अल बत्ता मतलब डक, बतख। अल मुअज्जिन, मुअज्जिन मतलब अजान देने वाला, बुलाने वाला। अन्नाका मतलब ऊँटनी, फीमेल, ये फीमेल है। इससे पहले आपने पढ़ा था जमलुन। इससे पहले पढ़ा था आपने जमलुन। जमलुन कहते हैं मुज़क्कर को, मुज़क्कर ऊँट, ठीक। मुज़क्कर ऊँट को जमलुन कहते हैं। और नाक़तुन मतलब ऊँटनी, ऊँटनी फीमेल जो वो फीमेल ऊँट जो होता है उसको कहते हैं नाक़तुन। तो अन्नाका मतलब फीमेल ऊँटनी मतलब। अलबैदा मतलब अंडा। तो ये भी आपका वाजिब मंजिलिया है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें सिर्फ तिल्का और ज़ालिका का इस्तेमाल करना है, इशारा बईद का, ठीक। जो मुज़क्कर हों उनके लिए ज़ालिका का इस्तेमाल हो जाएगा, और जो मुअन्नस है उनके लिए तिल्का का इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने फिर से एक बार बता दिया। हाज़ा ये करीब के लिए है, हाज़ा मुज़क्कर करीब, हाज़िही मुअन्नस करीब। ज़ालिका ये मुज़क्कर बईद, तिल्का मुज़क्कर बईद। ठीक है इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल?